Good morning class 10th. Welcome back once again to our online classes, and today we are going to discuss about the one practical that is related to the chapter number 3, and that is a part of a refraction. Today we are going to see the practicals on refraction through the glass prism. You can see here the aim is given here, refraction through the glass slab. Glass slab से हमें refraction को consider करना है. In this practical we required the apparatus required here, that is a glass slab, scale, protector, paper pin and pencil. First of all we should know about the theory, what the theory is related with this part of a refraction. Refraction किस theory से relate करती है? We have some theory here. You can see here a glass slab is situated in the mid part of the figure. You can see here a glass slab is situated. The light is incident at the glass slab, that is called the incident ray. जो लाइट ग्लास स्लैब से इंसिडेंट करती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं. द लाइट दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्लैब, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल. नाउ आफ्टर द इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल. हमारा जो एंगल ड्रॉ होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल. नाउ आफ्टर द इंसिडेंट रे, the light passed from the glass slab. After the incident, the light will pass from the glass slab. This is called the refracted ray. इसको refracted ray कहते हैं. And the angle is the angle of refraction. This is the R1 and we can draw here R2. जो angle हमारा refract होता है, that is called the angle of refraction. And this is called the R1 and this is the called R2. Here we have a two medium. This is the N1 medium and this is called the rarer medium. Rarer and this one is a denser medium. हमारा एक rarer medium होना चाहिए, दूसरा denser medium होना चाहिए. Then we will able to get the refraction. एक medium हमारा rarer है, दूसरा हमारा denser है. We know when we was studying in the class, we know that we have discussed about there, when the light pass from the rarer to the denser medium, it bends towards the normal. वो normal की तरफ bend हो जाती है. और जब वो डेंसर से रेयर में जाती है तो इट बेंड्स आउटवर्ड्स टू द नॉर्मल, हमारे रे से थोड़ा सा नॉर्मल से बाहर की तरफ चली जाती है. द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड द इमर्जेंट रे. द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इमर्जेंट. इसको एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं. द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इमर्जेंट. When we trace the path of the incident ray in a straight direction, जब इंसिडेंट रे के पाथ को हम स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेस करते हैं, we will see there are lot of differences there in the path and this difference is called the lateral shift. इसको हम lateral shift कहते हैं. Okay, that was all about the refraction through the glass prism. Let me now go through the practical and we will see there how we are going to do the practical there. कैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कैसे उसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं. ओके, सो लेट वी गो टू द प्रैक्टिकल लैब. Hello class. Now we are going to start the practical. Now you can see on the screen here we have glass slab, scale, eraser, pencil, protector and some pins. This is a paper pen. You can see here we need to take a paper pin such a type and we have a board and a white paper. आप देख सकते हैं हमारे पास एक सॉफ्ट बोर्ड है. सॉफ्ट बोर्ड क्यों लेते हैं? ताकि हम उसमें इजीली पिन लगा सकें. नाउ लेट वी स्टार्ट द practical here. We will take some pins and we will start the practical here. Now what we will do, we will take a glass slab and draw the shape of a glass slab here. glass slab को हमने बीच में सिचुएट कर दिया. हम पिन से पेपर को पिन अप कर दे रहे हैं साइड में, जिससे पेपर अपनी प्लेस से मूव ना करें. एक कॉर्नर पे लगाया और इधर भी एक दूसरे कॉर्नर पे एक पिन लगा देते हैं, जिससे पेपर अपने प्लेस से मूव ना करे और इजीली हम प्रैक्टिकल को कर सकें.
Now we are going to draw the shape of a glass slab here. Glass slab is in the form of the rectangle, and now with the help of a pencil we'll draw the shape. हमने ये अपर साइड को ड्रॉ किया, साइड वे को ड्रॉ किया, चारों कॉर्नर्स से ड्रॉ करके ग्लास स्लैब का शेप ड्रॉ कर लेंगे. इसको हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? ताकि इजीली हम इसमें रिफ्लेक्शन शो कर सकें. यू कैन सी हियर अ ग्लास स्लैब इज प्रॉपर्ली ड्रॉन हियर. ये ग्लास स्लैब का शेप है. नाउ वी विल टेक द प्रोटेक्टर. वी विल पुट द प्रोटेक्टर एट द अपर सरफेस ऑफ अ ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब के अपर सरफेस पे हम प्रोटेक्टर को पुट करेंगे. इसमें हम दो एंगल ड्रॉ करेंगे. एक नॉर्मल लाइन पहले ड्रॉ करेंगे. नॉर्मल लाइन से एक एंगल हम इंसिडेंट एंगल ड्रॉ करेंगे. इसको सिचुएट करने के लिए पहले हम एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं और इस प्रोटेक्टर को इस पॉइंट पे पुट करेंगे. नाउ ये स्ट्रेट लाइन हमारी ग्लास स्लैब की साइड सरफेस पर होनी चाहिए. रिमेंबर दैट. ऐसे हम इसको रख लेते हैं साइड स्लाइड्स. नाउ विल मार्क द नॉर्मल पॉइंट. एक हम पॉइंट मार्क करेंगे 90 डिग्री पर नॉर्मल लाइन के लिए. नाउ इसे 30 डिग्री पर एक हम पॉइंट और मार्क कर देते हैं. नाउ ये जो पॉइंट हमने मार्क किया ये 30 डिग्री पर है. यू कैन सी इजली पॉइंट को हमने 30 डिग्री पे मार्क किया. नाउ रिमूव द प्रोटेक्टर एंड वी विल ड्रॉ द लाइन. ये हमारा 60 है, ये हमारा 90 है. जब 60 से 30 डिग्री लेफ़्ट साइड जाएंगे तो हम 60 पे आएंगे. सॉरी 90 से 30 डिग्री पे 60 पे आएंगे. नाउ वी विल ड्रॉ द लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट. इस पॉइंट से एक स्ट्रेट नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे. नाउ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने ड्रॉ किया. ये हमारा नॉर्मल लाइन और इससे एक इंसिडेंट रे ड्रॉ किया 30 डिग्री पर. इसकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इनवर्ट्स होगी टू द ग्लास स्लैब. यू कैन सी हियर. इसको थोड़ा मैं और मार्क कर दे रहा हूँ प्रॉपर तरीके से. अब इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा इंसिडेंट रे है. इंसिडेंट रे के पाथ को हमने आगे मूव करा दिया बिकॉज ऑफ वी नीड टू फाइंड हियर लैटरल शिफ्ट ऑल्सो. नाउ दिस एंगल इज अ 30 डिग्री. 30 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ कर लिया. ओके. नाउ पुट द ग्लास स्लैब अगेन हियर. ग्लास स्लैब उस शेप पर फिर से हम पुट कर देंगे. यू कैन सी द लाइन इज विजिबल हियर. ग्लास स्लैब को हमने वापस उस पर पुट कर दिया. नाउ वी विल टेक अ पिन, 2 पेपर पिन. जो पेपर पिन स्टार्टिंग में हमने लिया था, अब इस पेपर पिन को हम इंसिडेंट रे पर लगा देंगे ऐसे. यू कैन सी हियर हमने इसको स्ट्रेट एकदम लगाया परपेंडिकुलर टू द पेपर पिन. दूसरा पिन देखते हैं. दूसरा पिन लगा देते हैं. नाउ ये हमने लगा दिया इंसिडेंट रे पर पेपर पिन. नाउ वी विल सी फ्रॉम हियर ग्लास स्लैब के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस जगह से, इस पॉइंट से हम अपनी आईज पुट करके देखेंगे. ऐसे देखेंगे कि दोनों पेपर पिन हमारे स्ट्रेट डायरेक्शन में हो. हम यहाँ से ऐसे देखेंगे कि दोनों पेपर पिन हमारे स्ट्रेट डायरेक्शन में हो. अब यहाँ से हम 2 पेपर पिन को हम पुट करेंगे जो कि इस लाइन की स्ट्रेट डायरेक्शन में होनी चाहिए. चलो करके देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे पुट करते हैं. एक हम पेपर पिन ये लिए, 2 पेपर पिन. अब इन दोनों पेपर पिन को हम स्ट्रेट पुट करेंगे. यहाँ से साइड से देख करके हम पुट करेंगे. एक मैं लगा लेता हूँ ताकि ये दोनों हमारे स्ट्रेट लाइन में रहें. एक मैं लगा करके दिखाता हूँ, फिर विजुलाइज करके भी दिखाऊंगा. कैमरे को थोड़ा स्लैंट करके भी दिखाऊंगा कैसे मैंने किया. यहाँ पर हमें पेपर पिन लगाना है. नाउ ये पेपर पिन को हम जब लगाएंगे तो देखेंगे दोनों एंगल हमारे सारे पेपर पिन एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए. और ये हमने एक पुट किया साइड से देखते हुए पेपर पिन. फर्स्ट पेपर पिन हमने पुट किया. ये फर्स्ट पेपर पिन लगा दिया मैंने. और ये सेकंड पेपर पिन को लगाते हैं सेम लाइन पे. यानी चारों पेपर पिन एक स्ट्रेट लाइन पे हमें दिखाई देनी चाहिए. अब साइड से हम कैमरे को करके देख लेते हैं कि कैसे हमने लगाया है, कैसे हमें दिख रही है. क्या एक लाइन में हमें दिख रही है? हम कैमरे को इस साइड से देखेंगे कि ये सारी पेपर पिन एक लाइन से हमारी दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं. लेट वी टेक द कैमरा टू द एंगल.
वेट, नाउ हमने कैमरे को थोड़ा साइड से देखा, यू कैन सी हियर ऑल द पेपर पिन्स आर इन अ सेम डायरेक्शन, यू कैन सी नाउ। अब देखो सारी पेपर पिन हमारी सेम डायरेक्शन में है, दिख रही है सबको। नाउ कैमरे को वापस रखते हैं। नाउ रिमूव द ग्लास स्लैब एंड ड्रॉ द लाइन हेयर विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। इसको मैंने रिमूव किया पेपर पिन को। अब इस पॉइंट से होते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, इन दोनों पॉइंट से होते हुए पास होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। रिमूव द ग्लास स्लैब, टेक द स्केल एंड ड्रॉ द लाइन that is passing through these 2 points. That is the refracted ray, refracted passing from the glass slab. इसको हम स्ट्रेट करके दोनों पॉइंट से हमने ये ड्रॉ कर दिया। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, इमर्जेंट कह सकते हैं इसको। नाउ वी नीड टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर हियर, दैट इज द नॉर्मल। एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन को हम इस पॉइंट को अपर पॉइंट से मैच करा देंगे, दोनों पॉइंट को मैच द पॉइंट हियर, दोनों पॉइंट को हम मैच करा दे रहे हैं। ये हमने मैच करा दिया, स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया, मैच करा दिया। नाउ वी हैव सीन हियर दिस इज द लाइट पासिंग, वी नीड टू ड्रॉ द डायरेक्शन हियर, दिस इज द इंसिडेंट रे। इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इंसिडेंट रे का हमने ड्रॉ किया है एरो, ये लाइट हमारी पास हो रही है ग्लास स्लैब से, हमने ग्लास स्लैब में एरो ड्रॉ कर दिया है। पास होती है जब ग्लास स्लैब के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही है, वी कैन सी हियर अ सॉर्ट ऑफ अ रिफ्रैक्शन इज टेक इन प्लेस हियर, दिस इज हियर। नाउ ड्रॉ द लाइन दैट वी हैव ड्रॉन इनिशियली। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि कितना पाथ में डिफरेंस आता है, दैट इज कॉल्ड द लैटरल शिफ्ट। थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं क्योंकि हल्का सा टेढ़ा ड्रॉ हुआ है, स्ट्रेट डायरेक्शन में हम ड्रॉ करते हैं ये। नाउ जैसे हमने स्ट्रेट डायरेक्शन में उसको ड्रॉ किया, स्ट्रेट हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ वी कैन सी सम डिफरेंस इज देयर बिटवीन द बोथ पाथ, दोनों पाथ में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, एंड दिस इज कॉल्ड द लैटरल शिफ्ट। इसको हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। अब देखते हैं कितना पाथ का डिफरेंस है दोनों में। इट इज़ ऑफ नियर अबाउट 1.3 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया है। यानी लैटरल शिफ्ट कितना है, वी कैन राइट हियर लैटरल शिफ्ट इज ऑफ 1.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.3 सेंटीमीटर का लैटरल शिफ्ट है यहाँ पर। ओके, नाउ वी कैन सी हियर दिस इज द नॉर्मल एंगल, नॉर्मल रे। यू कैन सी द लाइन इस नॉर्मल को हम ये एंगल ड्रॉ कर दिए हमने यहाँ पे। ये एंगल की वैल्यू देखें कितना एंगल है, ये इट्स अ वेरी स्मॉल एंगल। देखते हैं कितनी डिग्री का एंगल है, 20 डिग्री का एंगल है। ये हमने पॉइंट को इस पे पुट किया। अब मेज़र करते हैं कि कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है। इस लाइन को हम इस नॉर्मल पे पुट करेंगे। नाउ विल मेज़र हियर, इट इज़ ऑफ 20 डिग्री एंगल, 20 डिग्री का एंगल ड्रॉ हुआ। इट मीन्स रिफ्रैक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल से थोड़ा सा छोटा हो जाता है। दिस इज़ ऑफ 20 डिग्री, 20 डिग्री का एंगल। अब सेम एंगल नीचे भी ड्रॉ होगा। हम नीचे मेज़र करना चाहें या मेज़र कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं करेंगे। ये हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड एंगल। अब यहाँ पर एंगल जो होगा ये भी रिफ्रैक्टेड होगा ना। ये दोनों हम चेक करेंगे कि कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है नीचे डायरेक्शन में। पुट द अगेन पॉइंट ऑन द सेम हियर, सेम पॉइंट को हमने पुट किया। वी विल सी हियर द एंगल इज ड्रॉन इज ऑफ 30 डिग्री। यानी जितना इंसिडेंट एंगल था उतना ही रिफ्रैक्टेड एंगल हमें मिला। एमर्जेंट एंगल हमारा स्लाइटली सा कम है, लेकिन इतना हम कंसिडर करेंगे क्योंकि ड्रॉ करने में थोड़ा सा है। दैट इज़ 29 और 28 डिग्री, 28 डिग्री और 30 है नीचे 28 डिग्री। थोड़ा सा वेरिएशन आया है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है ये ड्रॉ करने में। Now this is the observation that you need to do on your
प्रैक्टिकल कॉपी। अब जैसे मैंने एक बार ऑब्जर्वेशन किया 30 डिग्री एंगल का, इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री, रिफ्रैक्टेड 28 डिग्री, उसी तरह हम 2-3 बार और ऑब्जर्वेशन करेंगे। एक 45 डिग्री से, सेकंड 60 डिग्री से, और इसका हम एवरेज फाइंड करेंगे। जितनी भी हमारे एंगल आएंगे उसका हम एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट डाउन ऑल दिस कैलकुलेशन है। आप इसको करके भी देख सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके आप फिर से इसको नोट डाउन कर सकते हो प्रॉपर तरीके से कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्शन एंड व्हाट विल बी द एंगल ऑफ emergent or emergent angle. Okay, that's all here.
निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो हमारा कुछ प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करता है बट पूरी प्रॉपर्टी नहीं करता। दैट वी हैव डिस्कस हेयर इन अबाउट द हिस्टैरिसीस कर्व। ओके, बाकी इसके बाद पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।